So, Brother Piyush, if had we been in a classroom session, we would have clapped, sir. Here also with video on, we can do it, and we are welcoming you, Brother Piyush, Sister Girija, Dr. Khandelwal, Dr. sorry, Dr. Sabarwal. Dr. Saberwal, yeah, Dr. Dipendra Saberwal, sir. Welcome to this program. We are connected to BK. They were the first to, join us. Are we not, Brother Piyush? Can you hear us? Yes, Sister Girija, I can see. yes, यस सर, स्वागत है, वेलकम है। आप हमें लेके जाइए सर उस पथ पे जहाँ पे हम बोल सकें, जो थीम है इसका कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। लेट्स फाइट द वायरस विदाउट फियर। ब्रदर पीयूष आप म्यूट है। yes, please. It's okay now. Yes. Thank you very much. First of all, I'm thankful to the EIL management. EIL is always in my heart because bond is so close. Fortunately, I'm known to several chairman and director HR personally, even today. I don't know, friends, how many of you know when Mr. Jha was your chairman, he was director personal as well. So I have been coming to EIL since then. And whenever invites comes from EIL, I feel as if I'm going to meet my family members. So I don't treat you people as members of EIL. I treat you as members of my family. And the present director Sahab, I'm known to him. I have met him several times, Kalra Sahab. And prior to him, Bhandari Sahab also I met him. In fact, he came to Brahma Kumari's organization. He delivered 1 or 2 lectures also. And Purvaha Sahab had been to Mount Abu several times along with his spouse. So I am so glad that subject is wonderful. I think the credit for that goes to Yadav Sahab and his team. And today we are having a panel, friends. I am BK Piyush into Brahma Kumaris for past 35 years. I have conducted more than 2,000 seminars in several companies like Delhi Metro, like ONGC, GAIL, BHEL, NTPC, of course EIL, and many other Procter & Gamble, Tata Group, many other organizations. List is long, IIMs, IITs, BHU, JNU, AIMS, list is very long. And with me is also Sister Girija, who is heading the Brahma Kumaris Center of Lodhi Road. She is into Brahma Kumaris for past 34, 35 years. She has been practicing meditation. She is a wonderful counselor. At the time of pandemic, she is counseling nearly 200 families because they are having a lot of fear, a lot of uncertainties are there. And along with me, Sister Girija, Dr. Sabharwal, Dr. Bipendra Sabharwal ji is also with us, who's heading Jeevan Hospital and Nursing Home. He's a wonderful doctor. He's a wonderful human being. And he is also into Brahma Kumaris, practicing meditation, teachings of Brahma Kumaris for past more than 10 years, along with his spouse. So this is the panel. And the flow of the program would be, friends, maybe I'll speak for 15, 20 minutes. Then Sister Girija would also speak. Dr. Sabharwal would speak. And then we will open the floor to you. You would speak. And whatever is there in your mind, and then we would like to answer your queries, your questions, and whatever it is. And you all know Brahma Kumaris is a global organization having its presence in nearly 150 countries with a huge network of more than 500 branches.
The global headquarters of Brahma Kumaris is in Mount Abu, which is a lovely place. And we have got one of the largest solar systems in Mount Abu, where 50,000 meals can be cooked in just 2 hours' time. We have got one of the largest halls in Asia, which is again an engineering wonder, which can accommodate more than 20,000 plus people. There is no pillar. This information I'm giving to you because you are all engineers. You come from engineering background. We have got a wonderful peace park where trees from hundreds of countries have been planted. And the moment you enter into the park, you feel as if you have reached somewhere a wonderful place. The present chief of Brahma Kumaris is Dadi Ratan Mohini ji, who is nearly 96 years old. And friends, you may not believe, she is up in the morning at 4 o'clock and she retires to her bed around 10 o'clock. So still she works for how many hours you can think of it. And this COVID time, several of our buildings, our facilities in Mount Abu, we have given to the administration, Rajasthan administration, district Sirohi administration, and they have changed that into COVID facilities. So whatever best we are doing at this time of pandemic. And today we are all with you. And today's subject is again wonderful. हमें कोरोना से लड़ना है लेकिन डरना नहीं है. Fear. Friends, fear, this word fear has got two meanings. F-E-A-R. Fight everything and run. Fight everything and rise. So now choice is yours. You want to run away or you want to rise. Because we are all positive people. We are all doing somewhere something meditation, spirituality. So we won't like to run away. We would like to rise. Every problem has got one lesson or the other. Let me make a note of it. परीक्षा, हिंदी में हम इसको कहते हैं परीक्षा, माने प्रभु की इच्छा. तो प्रभु की इच्छा क्या है फ्रेंड्स? कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है. I was raised in a village near Mathura. I lived there nearly for 15 years. Friends, I tell you, wonderful dincharya, wonderful routine we used to follow there. We will always be up, the whole family, the whole village is up in the morning around 5 o'clock, 4 o'clock. And the first thing we will do, we will go to temple, we'll do little puja, little prayer, little meditation. What for? So that I can charge myself here. I can boost my immunity. I can whole day remain in the high energy field. We had love for nature, everything natural, everything natural. Okay? And we would even, when I'll get up, we will salute with you my routine when I was in the village. So before we'll get up, we'll touch, we'll pray to Mother Earth, Sun, everything. So friends, ours is a wonderful culture. Probably we have to revert to our roots. हमें दोबारा से उस कल्चर को अपने जीवन में लाने की जरूरत है. Because today, whatever we call COVID or Corona, I think somewhere down the line, there's a very important role of our daily routine, our lifestyle, what we call it. Okay? तो आज की इस वंडरफुल शाम की शुरुआत हम एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज के साथ करेंगे. आप सभी अपना वीडियो ऑन करना चाहेंगे? I want to see smile on your face, please. Yes. Kindly put your video on. जल्दी से वीडियो ऑन कर ले. हाँ जी, जल्दी से कर लीजिए. Very good, very good. हम एक छोटी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हमें या तो स्माइल करना है या तो हमें स्ट्रेस. आपकी चॉइस क्या है बताइए अनुभा जी. लेट मी आस्क यू. स्माइल इधर है और स्ट्रेस इधर है. तो स्माइल है. कभी कभी बॉस डांट दे अनुभा जी, तब तो फिर थोड़ी स्ट्रेस होती है. नहीं, फिर भी स्ट्रेस को नहीं लेना है बिकॉज स्ट्रेस मेरी नहीं है. राइट? तो अपना हाथ ऐसे कर लेंगे. या डू योर हैंड लाइक दिस. वंडरफुल. हाँ, ऐसे करिए. एंड देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस.
अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो आई मे आस्क यू क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो आपको हर हाल में मुस्कुराना है। लोग मुझे पूछते हैं पीयूष भाई हाउ कम यू स्माइल थ्रू आउट द डे, तो मैं उनको एक शेर सुनाता हूं। एक्सरसाइज से पहले शेर सुन लीजिए। हुजूम गम भी मेरी फितरत बदल नहीं सकता। हुजूम गम माने माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम्स कैन नॉट चेंज माई हैबिट्स। हुजूम गम भी मेरी फितरत बदल नहीं सकता, मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की। ओके, सो आई वांट the logo, the tagline of EIL should be service with a smile. Okay, do your hand like this, sit straight, your neck should be straight, your backbone should be straight at this point of time, right friends? और हमें अपनी वाहवाही करनी है। What we are going to do? हमें अपनी वाहवाही करनी है। वाओ, राइट? चलिए मैं पहले करूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे वाह भाई मैं। यस प्लीज कम अप। ऐसे नहीं वाह भाई मैं, ऐसे नहीं बोलना, स्माइल करके बोलना है। और स्माइल कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा स्माइल करता है। फ्रेंड्स, यू मे नॉट बिलीव, अ स्मॉल चाइल्ड स्माइल्स ओनली 400 टाइम्स अ डे। बोलिए, स्मॉल चाइल्ड स्माइल्स ओनली 400 टाइम्स अ डे। अनुभा जी कैन यू टेल मी, आप सवेरे से कितने बारी मुस्कुराए होंगे? आउट ऑफ Yeah. सिलेबस? Not out of syllabus. 400 टाइम्स अ डे। ओके, चलिए दोबारा से करेंगे। बाभई में, बाभई में, बाभई मेरा परिवार, बाभई मेरा परिवार, बाभई मेरा स्वास्थ्य, बाभई मेरा स्वास्थ्य, बाभई मेरी EIL, बाभई मेरी EIL, बाभई मेरे बॉस। अनुभा जी देखा थोड़ी स्माइल कम हो गई, सम प्रॉब्लम आई थिंक। बॉस के नाम से स्माइल कम होती है फ्रेंड्स? नहीं। अगर बॉस को आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं भेजेंगे तो नोट कर लीजिए प्रमोशन में मुश्किल हो सकती है। ओके, सो ऑलवेज सेंड आउट पॉजिटिव एनर्जी। बाभाई मेरे बॉस, बाभाई मेरे बॉस, बाभाई मेरे स्पाउस। देखो थोड़ी एनर्जी कम हो गई है। अनुभा जी लगता है कुछ प्रॉब्लम है स्पाउस के साथ। यस फ्रेंड्स, अब मुझे आपके नहीं सारे सर, नाम यहाँ मेरी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है मुझे अपना वीडियो ऑफ करना चाहिए, नहीं ऑफ नहीं करिए, आप ऑन रखिए, बिकॉज यू आर अ क्योंकि लीडर टुडे। क्योंकि आपकी दृष्टि ना अनुभा जी से कहीं और भी जानी चाहिए अब। नहीं मैं पूछ लूंगा दूसरे लोगों से, प्रॉब्लम नहीं है मैडम। लेट मी गो टू आलोक अग्रवाल जी। आलोक सिंघल जी, आलोक सिंघल जी, आप सिंगल हैं या डबल हैं? सिंगल जी, आलोक सिंघल। Yeah, यस I'm प्लीज। married, sir. Yeah, I'm married. जी मैरिड? Yeah, अच्छा, yeah. आपका नाम ही सिंगल है लेकिन है तो आप डबल। सिंगल नहीं है, सिंगल है, हल है ये। ओके, शब्दों में नहीं जाना हमें। आप हर बात का हल निकाल देते हैं EIL में, इसलिए हाँ आपका जी, नाम सिंगल है। हाँ जी। ओके, तो हमें बोलना है बाभाई मेरे स्पाउस, Paul मेरा spouse. बाभाई मेरे स्पाउस। सिंगल साहब, अपने स्पाउस की कोई खूबी आप बता सकते हैं जल्दी से? खूबियां ही खूबियां हैं सर। एक बताइए बस। हाँ, she is very सोचना पड़ रहा है देखिए। straight forward. नहीं, जब ज्यादा होती है तो हाँ, बहुत सोच के बोलना पड़ रहा है सिंगल साहब। very straight forward and very clear in mind and thought and what she चलिए, does. वंडरफुल हाँ, the वंडरफुल। direct ओके, connect between what she thinks, what she feels, and what she does. There is no वेरी गुड, disconnect. वेरी गुड। Yeah. अश्विनी जी, अश्विनी भी सिंघल जी हैं? अश्विनी सिंघल? यस सर। जी, अश्विनी जी यस सर। बताइए, अपने बॉस की एक खूबी बताइए, और ध्यान रखना दीवारों के भी कान होते हैं। Sir, he is very cooperative and every time they help to us in personal and official way, official work, sir. बड़े भारी मन से बोल रहे हैं, सोच सोच के बोल रहे No, हैं। no, sir. This is true, sir. ये बातें दिमाग से निकली या दिल से निकली अश्विनी जी? दिल से सर, दिल से सर। बहुत सुंदर, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, तो अब Thank you, sir. एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। लास्ट दोबारा से ऐसे हाथ कर लेंगे।
हाँ, दोबारा से अपने हाथ ऐसे करेंगे और हम बोलेंगे सब वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। Friends, this exercise you have to do at least 10 times a day. सवेरे उठने के बाद करना है, ब्रेकफास्ट के बाद करना है, लंच के बाद करना है और चाय लेने के बाद करना है, शाम को करना है, रात को सोने से पहले करना है, ठीक है? अश्विनी सिंघल जी, योर मोबाइल इज विद मी, आई मे कीप टॉकिंग टू यू, राइट? ओके, चलिए दोस्तों, आज क्या हो रहा है, जब हम बात करते हैं कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है, तो हम में से बहुत सारे लोग भय में जी रहे हैं और हम में से बहुत सारे लोग भ्रम में जी रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग भय में क्या जी रहे हैं, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। माय गुडनेस, इट मींस आई एम इन्वोकिंग कोरोना इन माय लाइफ। ओके, और कई लोग क्या सोच रहे हैं, भ्रम में, मुझे तो कोरोना होगा ही नहीं, चाहे सारी दुनिया चली जाए लेकिन मुझे कोरोना होने वाला नहीं है, इसलिए मैं मास्क भी नहीं लगाऊंगा। नो, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। तो व्हाट आई हैव लर्नड इन ब्रह्मा कुमारीज फ्रेंड्स, मुझे भय में भी नहीं जीना है। भय माने फियर। जैसे ही आपको फियर आया, आपकी इम्यूनिटी डिप्लीट होना शुरू हो गई। अब तो आपको कोरोना होना ही है। हम सारे दिन क्या कर रहे हैं, हम कोरोना की न्यूज शेयर कर रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग संक्रमित हो गए, इतने लोग, वहां शमशान में जगह नहीं मिली। तो सोचिए 130 करोड़ प्लस पीपल अगर सवेरे से लेकर शाम तक यही न्यूज शेयर करते रहेंगे तो एनवायरनमेंट कौन सा बनेगा? हमने कौन सी एनर्जी अपने आसपास क्रिएट कर ली, बताइए? लो एनर्जी। मेरी एनर्जी डिप्लीट हो गई, मेरी इम्यूनिटी लो हो गई, इसलिए मुझे कोरोना हो गया, राइट? तो मुझे कोरोना के बारे में कुछ नहीं बोलना है, मुझे बोलना है मैं स्वस्थ हूं। हाथ ऊपर करें सभी, हाथ ऊपर करिए प्लीज, और हाथ पीछे लेके जाइए और मेरे साथ बोलिए मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, आई एम ओके, आई एम ओके। स्वस्थ का मीनिंग बहुत सुंदर है दोस्तों। स्व माने सेल्फ, स्थ माने स्थित होना। हमारी लाइफ के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हमारा ज्यादा ध्यान कहाँ है अश्विनी जी? ज्यादा ध्यान हार्डवेयर पर है। मैंने कमीज कैसी पहनी है, मेरे शूज कैसे हैं, मेरी टाई कैसी है, लेकिन हार्डवेयर से कई गुना ज्यादा जरूरी है सॉफ्टवेयर। ओके, राइट? आलोक जी, समझिए आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, जरा ताली बजाएं आलोक जी के लिए। कौन सी गाड़ी है इनके पास? आलोक जी, आप कुछ Yeah, बोलते yeah. भी नहीं है, नाराज तो नहीं है? No, I have kept myself muted. So, ओके, हाँ. आलोक जी के पास मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन आलोक जी का ड्राइवर अनाड़ी है। व्हाट विल हैपन आलोक जी? Hardware, software issues. एक्सीडेंट। हाँ. तो आज मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मर्सिडीज गाड़ी है एंड ड्राइवर अनाड़ी है। हमें सबने बोला कि अपना ध्यान रखो और चिंता न करो, तो हमने पहली बात को पकड़ लिया, अपना ध्यान तो रखा लेकिन चिंता ना करो उस बात को, चिंता करना शुरू कर दिया। तो अब मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे हार्डवेयर का भी ख्याल रखना है और उससे ज्यादा सॉफ्टवेयर का ख्याल रखना है। अब मुझे ड्राइवर अनाड़ी नहीं लेकिन खिलाड़ी चाहिए, राइट? तो मुझे न भय में जीना है और न मुझे भ्रम में जीना है, मुझे भावनाओं में जीना है। पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एनर्जी। बस सवेरे सवेरे उठ के अपनी सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम कर दीजिए, आई एम ओके। ये पॉजिटिव एनर्जी, हाई एनर्जी। ओके, और दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ लोग गम में जी रहे हैं और कुछ लोग गफलत में जी रहे हैं। गम किस बात का है? ओहो, कहीं शर्मा जी चले गए, बाजू वाले वर्मा जी भी चले गए, कहीं मैं भी न चला जाऊं। गम नहीं। आप सबको पता है, हमारे भारतीय दर्शन में बताया गया है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरी मृत्यु भी निश्चित हो गई। जो मौत से डरता है, क्या वो नहीं मरता है? वो तो दिन में कई बार मरता है।
इसलिए मुझे मौत से डरना नहीं है, मुझे मौत से लड़ना है। मुझे जब तक जीना है मुझे शान से जीना है। तो हम में से कुछ लोग गम में जी रहे हैं और कुछ गफलत में जी रहे हैं। मास्क भी नहीं लगाना, कहते ये तो सब सरकार ने कर दिया है। क्या मास्क लगाना है? मास्क लगाएंगे ना तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। देखिए अपनी बातें बना रहे हैं। कहते हैं कुछ हाथ पाथ नहीं धुलने हैं, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हमें सबसे मिलना है। तो हम गफलत कर रहे हैं, केयरलेस। नो, हमें SMS फॉर्मूला फॉलो करना है। S सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, M मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। इसको 3 W's भी बोल सकते हैं। इंग्लिश लेटर W, वॉश योर हैंड्स वेरी फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड सेकेंड W इज वेयर योर मास्क, एंड थर्ड W इज वॉच योर डिस्टेंस। हमें फिजिकल दूरी बना के रखनी है लेकिन मन से सबसे नजदीक रहना है। तो अब हमें भय भी नहीं है, हमें भ्रम भी नहीं है, हमें भावनाएं हैं। हमारी एक दूसरे के प्रति बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करनी है। और आगे हमें गम भी नहीं है और हमें गफलत भी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर रहमत है। हम भगवान की रहमत में जी रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब दवाइयां काम नहीं करती है तो दुआएं काम करती है। परमात्मा की रहमत, भगवान को याद करिए। सवेरे उठ के भगवान को गुड मॉर्निंग कर लीजिए। सवेरे उठ करके भगवान को गुड मॉर्निंग कर लीजिए और रात को सोने से पहले गुड नाइट कर लीजिए। ओके, हम में से कुछ लोग वहम में जी रहे हैं और हम में से कुछ लोग अहम में जी रहे हैं। वहम माने इल्यूजन। कहते क्या है कोरोना? WHO की कहानी है, फार्मा कंपनियां सारी मिल गई हैं और कुछ नहीं है। नो, इट्स नॉट इल्यूजन, इट्स रियलिटी। ओके, तो मुझे क्या करना है? मुझे वहम में नहीं जीना है और मुझे अहम माने ईगो। Many people are very egoistic. No, तो मुझे क्या करना है फिर? वहम को भी छोड़ना है और मुझे अहम को भी छोड़ना है। मुझे रहम को ले आना है। रहम माने मर्सी। इसलिए भारत में कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो हमें दया की भावना, अपने लिए भी दया, अपने परिवार के लिए दया, अपने देश के लिए दया, और सबसे बड़ी दया अपनी प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए दया। और कोरोना का अर्थ क्या है दोस्तों? कुछ करो ना। अब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है। आप अपने परिवार से बात करिए। आप अपनी जो बहुत सारे दिनों से आपकी अलमारियां सफाई नहीं कर पाए थे, उनकी सफाई करिए। कुछ लिखिए, प्रकृति से बातचीत करिए, समथिंग न्यू। आज YouTube पर कोई अच्छा खाना बनाइए। जो हमारे पुरुष यहाँ बैठे हैं, अगर वो बहुत अच्छा खाना बना के अपनी पत्नियों को खिलाएंगे तो क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? परिवार में प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखिए जो महिलाएं बैठी हैं कितनी खुश हो रही हैं। मैं बोल रहा हूँ पुरुष थोड़े कम खुश हो रहे हैं, महिलाएं ज्यादा खुश हो रही हैं। बोर्ड पे कितना ले रहे हो? तो कोरोना माने कुछ करो ना, डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, राइट फ्रेंड्स? तो अभी हम इस बात को जारी रखेंगे। अभी मैं सिस्टर गिरिजा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगी, फिर डॉक्टर सब्रवाल जी हमें अपनी बात बताएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ओवर टू सिस्टर गिरिजा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है। कोरोना से हमें लड़ना है लेकिन डरना नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम लड़ कम रहे हैं, डर ज्यादा रहे हैं। आज डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि डर से मृत्यु बहुत हो रही है। और आज हम देखते हैं कि 2 प्रकार से लोग डर रहे हैं। एक है कि जिनको कोरोना हो गया, उनको एक डर है मन में, पता नहीं अगला क्या होगा मेरे साथ। और जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो भी डर रहे हैं, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि कहीं मेरे साथ मुझे भी कोरोना न हो जाए। तो आज 50, 60, 70% लोग डर में जी रहे हैं। पूरे विश्व में
डर का वातावरण है, भय का वातावरण है। और आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि दिल्ली की हालतें बहुत अच्छा नहीं है। कई लोगों को ऑफिस जाना पड़ रहा है, बहुत डर डर के जा रहे हैं ऑफिस, डर डर के वहाँ सीढ़ी पर चढ़ते हैं, लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी से बात करने को भी डर रहा है, हर कोई डरते हैं। घर में कोई आ जाते, कुछ सामान आता है घर से, कोई सब्जी आती है, कोई दूध आता है, उससे भी हम लोग डरते हैं। तो आज डर को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारी बातों से, बहुत सारे डर से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, जिसके कारण उसका असर मन पर भी पड़ता है और शरीर पर भी पड़ता है। और उसका फायदा कोरोना को हो रहा है, कोरोना को, क्योंकि कोरोना हर घर घर में पहुंच गया है, हर जगह पे पहुंच गया है। और एक व्यक्ति को होता है, वो सभी को लेके जाता है, सभी को हो जाता है। और कई बार ऐसी सी घरों की कहानियां हम लोग सुन रहे हैं, घरों की सिचुएशन सुन रहे हैं कि पूरा माता पिता दादा दादी चले गए और 2 साल की बच्ची रह गई। और एक जगह पे ऐसे भी हुआ, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा रह गया और माता पिता चले गए, बुजुर्ग दादा दादी हैं। अब सोचिए कि कैसा समय आ गया है। तो नेचुरल है कि डर का माहौल है, तो डर तो होगा ही, क्योंकि सारी चीजें दिख रही हैं, सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो डर का माहौल है। लेकिन कई चीजें जिंदगी में आती है, कुछ बातें आती है, तो हमें जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आज हम अगर देखें कि हम एक्सेप्ट भी किस प्रकार से कर रहे हैं, हम डर डर के नहीं, लेकिन निडर हो करके हम विल पावर के साथ अगर हम लोग फेस करेंगे तो कोरोना को हम हरा सकते हैं। तो एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है, आप सब ने भी सुनी होगी कि जब भी कोई शहर में महामारी या बीमारी आती है, तो एक शहर में बीमारी जैसे दस्तक दे रही थी, कहानी है, तो उस शहर की सीमाओं में कुछ साधु लोग उस शहर की रक्षा करने के लिए खड़े होते थे। और जैसे बीमारी को देखी तो साधुओं ने पूछा कि बीमारी, इस शहर में आप आ रहे हो, आप कितनों को लेके जाओगे? क्योंकि हम सब अभी देख रहे हैं, ये सदियों से सब बातें हम लोग सुनते हैं, बीमारी सिर्फ अकेली नहीं आती है, लेकिन बीमारी के साथ उनके साथी है एक भय और एक मृत्यु। ये तीनों साथी आ जाते हैं। तो फिर साधुओं ने उनसे पूछा कि बीमारी से आप कितनों को लेके जाओगे? तो बीमारी ने कहा कि जो मेरे लोग हैं, मैं उनको लेके जाऊंगी। तो फिर साधुओं ने मृत्यु से पूछा कि आप कितनों को लेके जाओगे? तो मृत्यु ने कहा कि जितना बीमारी ले जाएगी, उसका 50% लोगों को मैं लेके जाऊं। और साधुओं ने भय से पूछा, तो भय ने कहा मैं किसी को भी लेके नहीं जाऊंगा। अब नेचुरल है कि बीमारी को फैलनी थी, बीमारी शहर में घुस गई, तीनों आ गए, महामारी फैल गई। जैसे कि आज कोरोना पूरे शहर में, पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज हम दिल्ली में देखें, दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली घर घर में, दिल्ली में पहुंच गई है, कोरोना पहुंच गया है। तो जब फैल गया, बहुत नुकसान हुआ। फिर जैसे अपना कार्य पूरा हुआ, जैसे कि आज डॉक्टर्स बताते हैं कि पीक के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे एक न एक दिन तो कोरोना तो जाएगा ही। तो उसी प्रकार से वो बीमारी पूरी हो गई, तो फिर वो जाने लगी। शहर से बाहर वही साधु लोग खड़े थे, तो लोग हैरान हो गए, साधु लोग देख करके हैरान हो गए, और उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन तीनों से पूछा कि बीमारी, चलो ठीक है, जितनों को लेके जा रही, तो चलो ठीक है, उतने आप लेके जा रही हूँ। और मृत्यु को भी देखा, जितना उन्होंने कहा था, उतने ही लोगों को, वो 50% लोगों को लेके जा रही है। लेकिन भय को देख करके उनको, साधुओं को बड़ा आश्चर्य लगा और उनको बहुत गुस्सा भी आया। तो उन्होंने कहा कि भय को, कि भी आपने कहा था कि मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, तो फिर आप सबसे ज्यादा आपके साथ
ही लोग हैं, आप इतनों को लेके क्यों जा रहे हो? तो भय ने बहुत सुंदर आंसर दिया, कहते हैं कि मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ खुद ही सभी लोग आ रहे हैं। तो रूहानी भाइयों बहनों, मेरा भाव ये है कि अगर हम कोरोना को जीतना चाहते हैं, कोरोना को हराना चाहते हैं, तो हमें मन में भय को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर मन में भय है तो आज 8 साल, 18 साल, 28 साल, 38 साल के लोग आराम से जा रहे हैं। अगर मेरे अंदर भय नहीं है, मेरे अंदर विल पावर है, तो फिर मैं नहीं जा सकती। 80 साल के, 90 साल के, अभी हम ऐसे ऐसे लोगों को सुना है जो 104, 105 लोगों 104, 105 साल की आयु, एक महिला, एक बुजुर्ग महिला, उन्होंने कोरोना को जीत लिया। तो कैसे? उनके अंदर विल पावर। तो हम मेडिटेशन के द्वारा, हम ब्रह्मा कुमारीज में बताते हैं कि विल पावर भी कैसे आएगा। जैसे अभी पीयूष भाई साहब ने बताया कि पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हमारी शक्ति खत्म होती है और उसका असर, उसका इफेक्ट बॉडी में आता है, जिसके कारण कोरोना होने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि कोरोना को खत्म करना है, सिर्फ उसको भगाना नहीं है, लेकिन टोटल उसको खत्म करना है। उसके लिए हमें शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ अपने मन की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने की जरूरत है। आज हम शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत बातें करते हैं कि विटामिन सी लेनी है, जिंक लेना है, न्यूट्रिशियस भोजन लेना है, दाल, पनीर, इस तरीके से हम एक दूसरे बताते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप में आता है तो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। लेकिन कभी भी हमने कि माइंड को, एक माइंड में विल पावर बनाने के लिए, माइंड की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कभी हम लोग शेयर नहीं करते, और करते होंगे लेकिन मैक्सिमम हम शरीर की इम्यूनिटी के लिए करते हैं। तो अगर हम दोनों का बैलेंस रखते हैं, शरीर और मन, तो फिर हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मन को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरत है। क्योंकि भय शरीर में नहीं है, भय तो मन में है। तो मन में भय को खत्म करना है। फिर वो मन में भय कैसे खत्म होगा? मन में विल पावर होगा, पॉजिटिव थिंकिंग। तो मेडिटेशन माना ही पॉजिटिव थिंकिंग। तो जितनी आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उतना मन के अंदर विल पावर बढ़ेगा, जिसके कारण हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो अभी हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। सभी सीधे होकर के बैठेंगे, कि उठना बैठना नहीं करेंगे। और अगर आप आंखें बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, और आंखें खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हमें नींद ना आए। मैं समझती हूँ कि आज का टॉपिक ऐसा है कि नींद नहीं आएगी, सभी हम डरे पड़े हैं। तो डर में कभी किसी को नींद नहीं आती। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। मेडिटेशन माना मेडिटेट करना, माना चिंतन करना, ध्यान लगाना। तो ध्यान क्या लगाएंगे? जैसे अभी हम बताते हैं कि जैसे मेरा हाथ है, हम कहते हैं ना मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूँ, मेरी आंखें, आंख मैं नहीं हूँ, मेरी आंखें। कान मेरे हैं, मैं कान नहीं हूँ। शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो इसका मतलब शरीर का जो एक एक ऑर्गन मेरा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? इस शरीर से अलग एक चैतन्य सत्ता, एक एनर्जी, जिसको हम सोल कह सकते हैं, जिसको हम प्राण कह सकते हैं, जिसको हम आत्मन कह सकते हैं, वो मैं हूँ जो यहाँ रिसाइड करती है। उसको मुझे स्ट्रांग बनाना है। अगर हमारा आत्मा और मन दोनों स्ट्रांग हो जाए, आत्मा अगर स्ट्रांग हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, तो मन भी हमारा शक्तिशाली हो सकता है, जिससे हम शरीर की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति।
कुछ समय के लिए अपने मन को बाह्य जगत से अंतर जगत की यात्रा पर ले चलते हैं। अंतर्मुखी होकर अंतर्मुख को देखें, मैं कौन? इन आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा विनाशी इस शरीर की मालिक हूँ। शरीर के एक एक कर्मेंद्रिय प्लस मन बुद्धि संस्कार मेरे अधीन है। मैं इनकी मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मन बुद्धि और संस्कार मेरे कंट्रोल में है। आज मन में भय डर है, लेकिन जब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप में स्थित होती हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं पीसफुल सोल हूँ। तो जहाँ शक्ति है वहाँ भय नहीं है। जहाँ शांति है वहाँ अशांति नहीं है। तो मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। महसूस कीजिए मेरे अंदर शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं और वो वाइब्रेशंस मेरे चारों तरफ दूर दूर तक फैल रहे हैं। मुझे अपने आप को भी सेफ रखना है और मेरे चारों तरफ दूर दूर तक लोगों को भी सेफ रखना है। अगर हम सवेरे एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो सवेरे ही हमारे अंदर शक्ति की क्रिएट होती है। हमारे अंदर बहुत पावर्स आती है और वो पावर्स इनर पावर्स है जिनको हम विल पावर कहते हैं। वो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से, इसलिए यह राज्यों का अभ्यास अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग जब भी समय मिले, सवेरे दोपहर शाम, यह राज्यों का अभ्यास मेडिटेशन की प्रैक्टिस अवश्य करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request Dr. Vipendra Sabharwal ji to kindly share your wisdom. Om Shanti. Good evening, good afternoon to everybody. मैं डॉक्टर विपेंद्र sabharwal. I'm a surgeon by profession and I'm running a hospital by the name of Jeevan Hospital.
और मैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत बहुत सीखा है यहाँ पे। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, मैं EIL को भी थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे इस इंटरेक्शन का पार्ट बनाया। अगर मुझे याद आए तो आई थिंक तकरीबन 35-36 डेज हो गए हैं जिसमें हम लोगों ने इसको जिया है। जो ये टॉपिक है उस टॉपिक को हमने जिया है। मतलब कोरोना से डरना नहीं है और लड़ना है। तो ऐसे 16 दिन निकले जब हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था। हम, मेरे चाहे ड्राइवर हो चाहे हमारे कंपाउंडर्स हो, मेरे पास तकरीबन 200 लोग हैं जो मेरे साथ हैं, वो भाग रहे थे किसी ना किसी तरह ऑक्सीजन लाने के लिए। वो भी इसलिए कि कुछ 40 से 45 लोग थे हमारे हॉस्पिटल में जिनको ऑक्सीजन के बिना शायद उनकी जिंदगी हम आगे नहीं करने वाला, तो जैसे हम कहते हैं परमात्मा है, पर हमें लग रहा था कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक्चुअली वी हैव लिव्ड दिस लाइफ एंड आई फील कि जो आज तक से पहले हमारे फियर्स थे, हमारे फियर्स क्या थे? हमारे फियर्स होते थे कि मेरा को अच्छा वाईफाई कनेक्शन मिलेगा कि नहीं, मेरा डाउनलोड पूरा होगा कि नहीं, मेरी बैटरी तो नहीं चली जाएगी फोन की। ऐसे फियर्स थे हमारे माइंड में एंड वी वर लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक जो हमने डरना, क्या डरना होता क्या है, आज के दिन ये जो 3 फियर्स थे वो 3 फियर्स चेंज हो गए और आज सबको फियर ये है कि क्या मुझे कोरोना होगा। दूसरा, अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या मुझे एक बेड और ऑक्सीजन मिलेगी। और तीसरा, अगर मुझे बेड और ऑक्सीजन मिल गया और मेरा ट्रीटमेंट हो गया तो मेरे लॉन्ग रन इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या बाद में मुझे कोई इफेक्ट्स होंगे। तो मैंने ये देखा कि इस दौरान में जब इतनी खलबली मची थी, इतना सब लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे द लाइफ हैज एंडेड, देयर वाज हार्डली एनीबॉडी हु डिडंट हैव द एक्सपीरियंस कि उनकी फैमिली में किसी को कोरोना ना हुआ हो या कोई इफेक्टेड ना हो या कोई दूसरे को हेल्प करने की कोशिश ना कर रहा हो। तब हमने देखा कि जो हमने चीज़ें यहाँ पर सीखी, जो हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने एक्सपीरियंस किया कि मैं बेसिकली आई एम जस्ट डूइंग माई रोल एज अ डॉक्टर। आई कुड हेल्प ओनली पीपल जितनों को मैं हेल्प कर सकता था, और मैंने पूरी कोशिश करी और आज भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनों की हेल्प कर सकूँ। तो ये मेरा रोल है। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ सीखा है वो ये सीखा था कि दिस होल थिंग इज अ ड्रामा। एंड ड्रामा का हम अलग से विच्छेद भी यहाँ करते थे कि ड्रामा का मतलब है डरा माँ। जैसे एक माँ होती है, वो बच्चे को डराती है, वो बच्चे को बोलती है कि बेटा ऐसा मत कर नहीं तो ये हो जाएगा। और वही सीखते 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 एक छोटा बच्चा था जो बार बार उस माँ उसको कहती थी कि देख ये छोटा सा कुत्ते का बच्चा आ रहा है, ये तेरे को काट जाएगा, ये पिल्ला काट जाएगा। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा हुआ तो घर के बाहर गया, उसको उठा के ले आया, कहता ये तो मुझे काटा नहीं। तो एक्चुअली यही बात होती है कि हमें ये समझ में आया कि बेसिकली दिस इज ऑल अ स्टेज एंड आई एम डूइंग माई रोल। तो ये रोल तभी होगा जब आई एम सोल कॉन्शियस। सो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच बेटर एट दिस टाइम। एंड ये समझ पाया कि कोरोना जैसी जो बीमारी है, अगर हम उससे डरे तो बेसिकली अगर मैं मेडिकल टर्म्स में कहूँ तो डरने का मतलब क्या है? डरने का मतलब है फियर। फियर का मतलब है दोज फियर हार्मोन्स आर गोइंग टू बी सिक्रेटेड इन माय बॉडी। जैसे एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है। मैं सर्जरी करता हूँ, अगर 10 घंटे की सर्जरी करता हूँ तो मेरे इतने एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, इतने कई बार पसीने आते हैं, इतना टेंशन होता है, दैट इज स्ट्रेस। बट पॉजिटिव हार्मोन्स क्या हैं जिसको हम डोज बोलते हैं? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। सो हमने देखा कि इतने डिफरेंट लोगों को हमने इस बीमारी से लड़ते देखा है। वो 20 साल के भी थे। दिस वाज द सेकंड फेज। एज वी ऑल नो, द फर्स्ट फेज वी ऑल मेनली हैड पीपल मोर देन 55 years 60 years who got affected, एंड देन लकीली उन लोगों को वैक्सीनेट किया गया तो उनके अंदर ये चीज थोड़ी सी सिवियरिटी कम हुई। और सेकंड फेज जो लोग एक्चुअली एक्सपोज थे, इस बार जो सबसे ज्यादा ब्रुटैलिटी और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है वो हुआ है 30 to 55 वाले लोगों में। जो हम लोगों के एज ग्रुप हैं उनमें सबसे ज्यादा सफरिंग हुई है। और उनकी हमने देखा कि इम्यूनिटी तो थी ही नहीं। मतलब हमने जब देखा कि 25-30 years वाले जब आ रहे हैं और जिनको हम थोड़ा सा भी पॉजिटिव वेंटिलेशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लंग्स रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। एंड देयर माइट हैव बीन मेनी रीजंस। तो इससे ये समझ में आया कि एक्चुअली जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं उन वो इतने ज्यादा डिप्राइव्ड हैं हमारी बॉडी में। सिंपल जो डोपामीन है, जो आजकल डिप्रेशन है, जैसे एक मुझे 2 लाइनें भी याद आती हैं कि तनाव की हो गई है आदत इस कदर, तनाव की हो गई है आदत इस कदर कि तनाव होता है तनाव ना होने पर। तो इस तरह का माहौल है, इस तरह की हालत है। तो जब हम इस तरह के माहौल में जी रहे हैं जिसमें ऑलरेडी मेरी बैटरी डिप्लीटेड है, अगर मेरी बैटरी है ही 5% और 10% और मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स से भी
एक इफेक्ट हो जाता है, तो उस 10% बैटरी से वो क्या फाइट कर सकती। सो इसलिए इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग कि इस टाइम पे जो यंगस्टर्स हैं, जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो कि भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं काम करने के लिए, पर अगर मैं कहूँ कि मैं कोरोना के ठीक होने के बाद मैं सर्जरी करना बंद कर दूंगा, या मैं आई शुड नॉट एक्ट एज अ सर्जन, या आई शुड जस्ट सिट एट होम, दैट इज नॉट द वे टू डू। द थिंग इज कि ऑलरेडी मेरा काफी डिप्लीशन हुआ था और इस टाइम मेरे पास फाइट करने के लिए पावर नहीं थी। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आज मुझे डर की वजह से उन हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं होने देना, आज मुझे पॉजिटिविटी बढ़ानी है, उन हार्मोन्स को लाना है जो मेरे सिंपल हंसने से, खुश रहने से, औरों को अच्छे से देखने से, किसी को हक करने से, किसी अच्छी कंपनी में होने से सिक्रीट हो सकते हैं, और जो कि बाद में हम लोग ही देते हैं कि जी ये ऑक्सीटोसिन का टैबलेट है, ये सेरोटोनिन की टैबलेट है, ये आप लीजिए, एंटी डिप्रेसेंट्स लीजिए। अब जहाँ तक मामला है कोरोना का, अगर मैं आपको दोनों चीजें बताऊं, सी एक्चुअली we have so many things, we have so much knowledge in last 1.5 months. I think everybody is so much knowledgeable right now, and the thing is कि उस बीमारी के अंदर जाना तो there is no end to it। मैं उसके बारे में 10 घंटे भी बात कर सकता हूँ, वो हम इंटरेक्शन में भी बात कर सकते हैं, बट हमारे को जो दूसरा पार्ट है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसकी अब स्पिरिट नहीं रह गई और सिर्फ रिचुअल्स रह गए हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका पार्ट इतना इंपॉर्टेंट देखा कि मेरी बैटरी चार्ज करने के लिए मेरे पास अगर कोई कनेक्शन ही नहीं है, अगर मेरी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन ही नहीं है, तो मैं बैटरी चार्ज कैसे करूं और लोगों को कैसे करूं। जैसे कहते हैं कि कोई भूखा आदमी है वो दूसरे को रोटी खिला सकता है, अगर मैं सर्जरीज करके निकला और बाई चांस कोई मेरे से खाना मांग रहा है, मैं अपना खाना भी दे सकता हूँ, पर अगर जो आदमी के अंदर कुछ है ही नहीं, एनर्जी नहीं है, खुशी नहीं है, दूसरे को कैसे खुश कर सकता है या किसी को बेटर कर सकता है। So I think that particular part, मतलब mental, physical and definitely financial, these three issues have been big issues in this time. So to fight corona we need all these three. और सबसे पहला मैं ये बताऊंगा, फाइनेंशियली तो लोगों ने बहुत तरह से मैनेज करने की कोशिश करी, बिकॉज जब जान पे आती है तो हर इंसान आगे से बढ़ के आगे आता है और बहुत लोग मदद करने भी आ जाते हैं। हमारी जिंदगी निकल जाती है कि हम उस टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, उस टाइम के लिए हम कलेक्ट कर रहे हैं, और वो जब टाइम आता है तो शायद उस चीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो जो सेकंड पार्ट है फिजिकल, वो डेफिनेटली द फिजिकल जो हम लोगों ने देखा, टू फाइट कोरोना यू हैव टू बी फिजिकली फिट, बट उससे भी ऊपर जो मैंने देखा है कि जो मन है, मन को ये देखा है, द माइंड हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग एट दिस टाइम, एंड वी नो दैट वी हैव दीज थ्री प्रॉपर्टीज, जो हम कहते हैं कि हमारा मन है, बुद्धि है और हमारे संस्कार हैं, वो इस टाइम पे दे रियली आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई वुड नॉट से दैट इफ समबडी इज सफरिंग तो सीधा कह देना कि उसका कार्मिक अकाउंट है, ये किसी को भी चीज समझ में नहीं आती, बट कहीं ना कहीं हम ये समझें कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग पीपल, वी आर डूइंग गुड डीड्स, तो कहीं ना कहीं जब मेरी प्रॉब्लम आएगी तो वो चीज मेरे को डेफिनेटली हेल्प करेगी, एंड दैट आई हैव सीन फर्स्ट हैंडेडली। जिन पेशेंट्स का हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, 23 ईयर्स का एक लड़का जो 9 दिन तक हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रहा, जब कल उसकी आंख खुली और वो होश में आया, तो उसकी माँ, उसकी सारी फैमिली मेंबर्स, दे वर सो दिस थिंग, और तब लोगों की भीड़ देखने वाली थी कि जब 20-25 लोग आ गए और उन्होंने बताया कि ये बच्चा बचपन से किस तरह से उनकी मदद करता रहा है और किस तरह से वो बोले कि खुदा का बंदा है। और मेरे को उस टाइम ये दिखाई नहीं दिया कि वो खुदा का है या भगवान का है या क्रिश्चियन है, बट आई सॉ सो मेनी पीपल कमिंग एंड दे टोल्ड मी दैट ही इज बीइंग सच अ नाइस बॉय एंड ही इज डन सो मच गुड फॉर अदर्स। तो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में डॉक्टर बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि मेरे को भी कितना डिफिकल्ट टाइम से निकले हैं, हम लोगों को व्हाट्सएप वापस करते थे कि मैं आपको 6 घंटे में बात करता हूँ, 4 घंटे में बात करता हूँ, जिन लोगों से हम दिन में 4 बात कर पाते थे। तो डेफिनेटली इट हैज बीन वेरी टफ टाइम फॉर आर। हमारे यहाँ पर 30 से 32 लोग कोरोना मतलब दे हैड टू फेस कोरोना एंड दे गॉट कोविड पॉजिटिव। वी हैड फ्यू डेथ्स आल्सो ऑफ आवर नोन डॉक्टर्स। सो पॉइंट ये है कि ये सब चीजें जो हैं, लड़ने के लिए हमें ताकत तो चाहिए, और डरने में तो कुछ ताकत नहीं चाहिए होती। डरने में तो कोई भी इंसान, मैंने बताया ना, जो आदमी बैठ गया, जैसे हम कहते हैं अगर कबूतर ने भी आंख बंद कर ली तो वो भी भूल जाता है और बिल्ली आके उसको खा जाती है। तो डरने में तो आंख बंद करनी है और उसमें कोई भी बीमारी आपको लेके जा सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोगों को इस टाइम जो एनर्जी चाहिए, जो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, और वही एक सबसे बड़ा कारण है जो हम लोगों को इस परेशानी से निकाल सकता है। We are already talking about the third wave and this is not the end of the second wave, it's still going on. जो हमारे पास 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले लोग मिलते थे, कहते थे कि हम होम आइसोलेशन में हैं या वो माइल्ड थे, आज हम उनको क्रिटिकल देख रहे हैं।
आज वो आ रहे हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, कार्डियक इफेक्ट्स के साथ, कोएगुलेशन इफेक्ट्स के साथ। सो द थिंग इज ऑलरेडी हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा टीम वर्क की ज़रूरत है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को एक जो हमारा एक नज़रिया बन गया कि इस वक्त मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सोचना बहुत आसान है, पर जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब वो भी नहीं मिलती है। तो आज मुझे जो मिला है, अगर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बोलूँगा, एंड आई थिंक इट शुड बी वेरी सिंपल, आज मुझे जो मिल रहा है मैं उसको लेना नहीं चाहता। आज अगर मैं 1 घंटा किसी चीज़ को दे रहा हूँ, मैं उसको वो कंप्लीटली 1 घंटे को दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वहाँ पर हूँ ही नहीं। तो अगर आज मैं उस स्ट्रेंथ को नहीं लेना पा रहा हूँ, आज मैं जो ताकत मुझे मिल रही है उसको मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो कल जब प्रॉब्लम आएगी तो मैं जब उसको ढूंढने जाऊंगा तो वो मुझे नहीं मिल पाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। दिस इज व्हाट वी कॉल अ वेरी सिंपल साइकिल। और ये साइकिल मैंने यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली समझ ली है कि आज मैं जिसको ढूंढने जा रहा हूँ उसको मैं, जब वो मुझे ढूंढने आया था तब मैं वहाँ नहीं था। तो आज मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आज मुझे जो नॉलेज मिल सकती है, आज मुझे जो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, आज मुझे उस चीज़ को लेना है। अगर आज मैं उस चीज़ को लूँगा तो वो मेरे को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे ज़रूर हेल्प करेगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। एंड में मैं वो भी लाइनें बोलूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल इच्छा ही करने से, केवल इच्छा ही करने से मन की बात नहीं होती है। सुना कभी क्या यहाँ बिना चले मंजिल मिलती है। मोती सागर में होते हैं उनको तो लाना पड़ता है, गहरे पानी में जाकर गोता तो खाना पड़ता है। So I think we have to fight and we have to be strong and we have to prove that we are very very strong and we have some very good connection जो हमारे को चार्ज कर सके, और वो परमात्मा से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ, पीयूष भाई जी का और गिरजा दीदी का, जो इतने डिफिकल्ट टाइम में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर मैं 300-400 लोगों से एसोसिएट हुआ हूँ इस टाइम में, तो बहुत लोगों ने ऐसा पूछा है कि हम तो घर में बैठ के भी हमें कोरोना हो गया, तो आप डेली 200-250 पेशेंट्स देख रहे हो, आप डेली उनके अंदर हो, तो भी आप कैसे बचे हो। तो मुझे कई बार समझ नहीं आता कि वो मेरे से डाउट कर रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या मुझे गुड विश कर रहे हैं। बट आई थिंक थैंक्स टू गॉड एंड आई स्टिल फील कि आगे भी परमात्मा हमारे साथ रहे और मेरे साथ वाले भी और सब रहें और मैं सबके काम आ सकें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो फ्लोर ओपन है आपके लिए। डॉक्टर साहब का बड़ा बड़ा थैंक्स कर रहा हूं मैं, डॉक्टर सब्रवाल जी, हमारी गिरिजा दीदी, दोनों का धन्यवाद। नाउ फ्लोर इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। आई वांट यू आस्क, यू स्पीक योर माइंड। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं तो आप बताएं और हमारा पैनल उसका जवाब देना चाहेगा। यस प्लीज कम अप। यस सिंगर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है। प्लीज प्लीज अपना इंट्रोडक्शन देंगे सिंगर साहब पहले। यस सर, आई एम अश्विनी एंड आई एम फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट सर। और आपकी पोस्टिंग कहाँ है अभी? सर गुड़गांव में। वेरी गुड, बताइए सब क्वेश्चन। सर मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है, प्लीज। अगर सपोज सर 5 to 10 ईयर्स के बच्चे को कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर? डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं अभी इसी बारे में जो नमस्कार जी, मैं अभी इसी बारे में जो आपको बता रहा था कि अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार ही हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो यंग हैं उनके अंदर भी कोविड के लक्षण आ रहे हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी, बिकॉज ही इज अ चाइल्ड, आवर फर्स्ट स्टेप विल बी दैट उसकी हम ये लेके चलेंगे कि उसकी इम्यूनिटी फिर भी अच्छी होगी। जो 10 ईयर्स के अराउंड है उसकी इम्यूनिटी हम अच्छी लेंगे। जो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं 2 से 3 साल के, उनका फिर भी हमें डाउट होता है इम्यूनिटी का, तो हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं किया जाता जो बच्चे 10 साल के करीब होंगे। जैसे हम सारे ही काफी तकरीबन इस ट्रीटमेंट को जान चुके हैं, बट मैं आपको फिर से एक बार बेसिक बताऊंगा कि सबसे पहले मैनेजमेंट में इज द कंफर्मेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कि भाई उसको कोरोना है। अगर हमने सिंपल एक RT-PCR का टेस्ट किया और हमने उसमें देखा कि उसको कोरोना है, सो हम उसके बाद हम उनके लक्षण पे जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में 3 विभागों में इस डिजीज को डिवाइड करते हैं। ज्यादातर हमने जो अभी तक बच्चे देखे हैं उनमें माइल्ड ही सिम्टम्स हैं। माइल्ड सिम्टम का मतलब ये हुआ कि बच्चे को हो सकता है थोड़ा जुकाम हो, थोड़ी खांसी हो और थोड़ा फीवर आ रहा हो।
यही ज्यादा बच्चों में देखा गया। और चौथी चीज, वो बच्चा भी बोलता है कि मुझे आई एम फीलिंग टायर्ड, मतलब मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मेरे को खेलने का मन नहीं कर रहा, भागने का मन नहीं कर रहा। अगर यहाँ तक ही है बच्चे का, तो हम उसको बिल्कुल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको 100 से ऊपर बुखार आ रहा है, तभी हम उसको पैरासीटामोल देंगे उसके वेट के हिसाब से, सिंपल क्रोसिन पैरासीटामोल। अगर वो सिरप लेता है, 7-8 साल से छोटा बच्चा है तो सिरप देंगे, 8 साल से बड़ा है टैबलेट लेता है तो टैबलेट लेंगे। उसके बाद अगर उसको जुकाम है तो सिंपल एंटी हिस्टामिनिक जो बोलते हैं, जो हम सब सुनते हैं, जैसे एलेग्रा जैसी होती है या मॉन एलसी होती है, जो सिंपल होती हैं, जो उनको दिया जाएगा ताकि उसका जुकाम और गला जो है उसको कंट्रोल कर सके। बच्चे में हम थर्ड स्टेज में ही, मतलब माइल्ड में भी अगर थर्ड में जरूरत पड़ेगी तभी उसमें बेसिक एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जैसे टैबलेट ऑगमेंटिन है जो है, यहाँ एजिथ्राल है, बिल्कुल सिंपल एंटीबायोटिक दी जाएगी। तो उस तरह से ही हम करेंगे। बाकी एडिशनल जो हम बड़ों में दे रहे हैं वो बच्चे में भी दिया जाता है, जिंक दी जाएगी, विटामिन सी दी जाएगी और मल्टीविटामिन जरूर दिया जाएगा। तो ये चीजें बच्चे में। और बाकी उसको नेचुरोपैथी जो हम सब कर ही रहे हैं, थोड़ा स्टीम दिया जाए, थोड़ा उसको गरारे कराए जाए। सो इस तरह से बच्चे का अगर मॉडरेट टू सीवियर में जाता है, जो कि रेयर देख रहे हैं अभी तक हम बच्चों में, कि अगर सैचुरेशन कम हो रहा है, अगर बच्चे का 93 92 से सैचुरेशन कम होता है, फीवर 100 से नीचे नहीं उतर रहा, या कोई और लक्षण जो आजकल अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं, जैसे डायरिया भी हो रहा है, पेट में सीवियर दर्द हो रहा है, तब बच्चे को एडमिशन की जरूरत है और इंजेक्टेबल्स की जरूरत है। सर एक और था मेरा क्वेश्चन कि बच्चे के अगर जैसे फीवर वगैरह है तो बच्चे को हम आइसोलेट तो नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स को भी साथ रहना पड़ता है। उस केस में हम क्या टेक केयर करके चलें सर, या बड़ों को हो जाता तो बच्चों को कैसे टेक केयर करें? तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लव्स पहने जाएं, और उससे भी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल मास्क का जरूर यूज किया जाए, चाहे घर पे भी है। और जब बच्चा खाना खा रहा हो तो दोनों माँ बाप जो हैं उन दोनों के मुंह पे डबल मास्क होना चाहिए। और जब बच्चे का मास्क हो तब आप अपना फिर भी कर सकते हैं। आइडियल सिचुएशन में दोनों के पास मास्क होगा तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन बिकम 0 to 3% ओनली। सिर्फ खाने या पीने के टाइम पे हमें ध्यान रखना है, और टचिंग के हिसाब से ग्लव्स पहन के यूज करना है। तो दोनों ही चीजें देखी जा रही है। हमारे पास कम से कम 6-7 केस ऐसे हैं जिनके दोनों हस्बैंड वाइफ को हो गया और बच्चा 3 साल या 5 साल का है। तो उस चीज में दैट हैज वर्कड वेल। एंड लकीली बच्चों में इस बार सिवियरिटी नहीं है। तो अगर हम उनको शुरू, और सबसे क्रिटिकल टाइम बच्चे के लिए 5 से 9 दिन का रहेगा, तो 9 डेज है उसके टेस्ट आने के बाद, दैट इज वेरी क्रिटिकल, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एट दैट टाइम। थैंक यू सर। ओके, Thank you, Dr. Saab. Anybody else want to ask any Sir, question? myself is Anil Kumar. आप कहाँ पोस्टेड हैं कुमार साहब? सर मैं दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ। तो दिल्ली वाले हैं तो दिल वाले भी होंगे जरूर। बिल्कुल सर। बताइए प्लीज, कब आप। सर डॉक्टर साहब से मेरा एक क्वेश्चन था। डॉक्टर साहब ने अभी जो ब्रीफ किया, आपने थोड़ा सा बात बताया, उसमें एक चीज निकल के आई कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। तो उसमें सर क्या रीजन आपको लग रहा है कि कोरोना जो घर में बैठे भी हुए हैं, चारों तरफ से बंद कर रखा है, फिर भी कोरोना हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसी के घर अखबार आ गई, किसी का दूध आ गया, किसी की वेजिटेबल्स आ गई, किसी के फ्रूट्स आ गए, किसी के काम करने वाली आ गई, है ना। अभी हमने WHO की काफी स्टडीज आई हैं, ICMR ने भी स्टडी किया, बीच में 2 बार आया स्कूल थॉट के मे बी द एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज देयर। इस बार हमने ये भी देखा है कि पिछली बार की जो वेव थी, फर्स्ट वेव में, वी हैव सीन ओनली 1 or 2 people कमिंग फ्रॉम द फैमिली। दिस टाइम वी हैव सीन द होल फैमिली गेटिंग अफेक्टेड। मतलब इस बार ऐसा हो रहा है कि 10 लोग हैं तो 8 इफेक्ट हो गए और सिर्फ 1 या 2 ही बचे। तो डेफिनेटली पहला मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलूंगा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में था, और उस वजह से ये ट्रांसमिट हुआ। मतलब जैसे मैंने आपको चीजें बताई, कुछ ना कुछ तो घर में आ ही रहा है, और कुछ ना कुछ घर से जाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ लेने के लिए या करने के लिए। तो ज्यादा चांस वो है। दूसरा, कोई यंग जना है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, हु जस्ट बिकेम अ कैरियर, जो खुद तो सिम्टोमेटिकली मैनिफेस्ट नहीं किया, उसने अपना RT-PCR नहीं कराया, ये सोच के कि मुझे तो थोड़ा बहुत ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो उसने तो एल्डरली हैं या एडल्ट हैं, अच्छी इंटेंशन से उनकी मदद करने की कोशिश करी, पर वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो गया। एंड थर्ड, डेफिनेटली विच इज ब्लीक बट स्टिल देयर इज अ चांस दैट इट इज समवेयर एयरबोर्न का भी इसमें पॉसिबिलिटी है, जो कि पूरा डिनाई नहीं कर पाए हैं अभी तक। थैंक यू डॉक्टर साहब। एनीबडी एल्स? थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी के मन में कोई प्रश्न है दोस्तों, आप अपना मन खोलें। एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ डॉक्टर साहब से सर? हेलो जी संगल साहब बताइए। डॉक्टर साहब से ही क्वेश्चन है सर मेरा एक।
सपोज सर मैं एसिम्प्टोमेटिक केस हूँ और मुझे पता नहीं मेरे अंदर कोरोना है या नहीं है, और इन केस में वैक्सीनेशन लगवा लेता हूँ, तो इसका कोई साइड इफेक्ट होगा सर? अगर मैं सिम्प्टोमेटिक केस हूँ, मुझे पता नहीं है मेरे अंदर कोरोना है या कुछ। देखिए, वैक्सीन का इन शॉर्ट बताऊंगा कि वैक्सीन का मतलब क्या है कि हम आज 2 वैक्सीन मेनली चल रही हैं, उनमें से एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड है ना, सब सुन रहे हैं। ओके, राइट सर। हमारा वैक्सीन का फॉर्मूला क्या होता है कि हम जो कोरोना है उसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया और इनएक्टिवेट करके आपकी बॉडी में डाल दिया, तो वो हमारा रेजीम है कोवैक्सीन में। ऐसे कोविशील्ड में है कि चिंपैंजी के अंदर उसको एंटीजन दे दिया गया और वहां से लेके आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो समझिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनानी है किसी भी हाल में, तो वो पहला जो सुन रहे हैं कि पहला वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी नहीं बन रही, इसका मतलब यह है कि पहले मैंने सिर्फ एक एंटीजन मरा हुआ डाला जिसके अगेंस्ट मेरी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने वर्क किया और उसने एंटीबॉडी बनानी शुरू करी। अब जब सेकंड वैक्सीन जब लगी, मेरे को सेकंड डोज लगी, तो ऑलरेडी मेरी थोड़ी एंटीबॉडीज थी, तो इसलिए ज्यादा स्टिमुलेटेड इफेक्ट हुआ और बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी। तो आप समझ लीजिए अगर आपको कोरोना हो रखा है तो आप लोगों ने सबने देखा होगा RT-PCR में भी नाउ इट इज नॉट अ क्वालिटेटिव टेस्ट, इट इज मोर ऑफ अ क्वांटिटेटिव टेस्ट। उसके अंदर C जीन E जीन वगैरह लिखा जाता है, मतलब हम देखते हैं कि कितना उसके अंदर एंटीजन है आपके पास। तो समझिए आपको हुआ, पर इसका मतलब बहुत सीवियर नहीं हुआ था, इसका मतलब बहुत सीवियर एंटीबॉडीज नहीं बनी होंगी और बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने होने के बावजूद भी जो फर्स्ट डोज लगेगा दैट में एक्ट लाइक अ सेकेंड डोज और अ बूस्टर डोज, तो आपके अंदर एंटीबॉडी का ज्यादा बनेंगी पहले के बाद ही। और हो सकता है जो नॉर्मल कईयों को फीवर हुआ, कईयों को थोड़ा सा हाथ में दर्द हुआ, थोड़ा सा रिएक्शन हुआ, वो आपको पहली डोज में ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। बट इट इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बट स्टिल हमारी आज की डेट में ये है जो पिछली बार नहीं था कि अगर आपको डाउट है so definitely get a test done. Definitely there have been many cases in which RT-PCR is coming negative. This is because of the double mutant, number 1 because of the UK mutant, number 2 also आजकल अब इंडियन म्यूटेंट भी बोल रहे हैं, तो वो कई बार RT-PCR नहीं कैच कर पा रहा। बट स्टिल अगर आपको सिम्टम्स हुए हैं 3 दिन 5 दिन 7 दिन, तो बेटर है आप डॉक्यूमेंट जरूर करिए, वो आपको हर तरह से काम करेगा। आपके अपने लोगों के लिए भी बचने के लिए फायदा होगा कि आप किसी लो इम्यूनिटी वाले को पास ऑन नहीं कर देंगे, और ये नहीं होगा कि हर बार 10 दिन 12 दिन मैं अंदर हूं, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा ताकि मैं टेस्ट नहीं कराता, वो नहीं करना है। वी आर ऑल स्पेशली यू ऑल आर सच टेक्निकल पीपल, सो आई थिंक हम सब ये मैसेज पूरी सोसाइटी में दें तो अच्छा रहे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, may I come in? Yes, please introduce yourself, Yeah, I am Alok Singhal here. My question is to Dr. please. डॉक्टर साहब ने गुड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का बात किया, हैप्पी हार्मोन्स के लिए जो बात किया, उसके लिए व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन एज अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन इन द करंट सिचुएशन? yeah, that's, I think that's a very good question. See, the point is that's what I was mentioning, but I think abhi to yahi hai, because I can't tell you a hypothetical answer. We have to go for a quick fix. So quick fix में ये है कि मैंने आपको जैसे बताया डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, ये बहुत साधारण हार्मोन्स हैं। जैसे भाई जी भी बता रहे थे कि एक बच्चा कितनी बार हंसता है, तो आप हैरान होंगे ये जान के कि सिंपल हंस देने से ही मेरा डोपामिन बड़ा हो जाता है। अपने किसी जने के साथ बैठ के, हाँ, अपने किसी फ्रेंड के साथ 10 मिनट बात करने से ही अगर मैंने बात कर ली अच्छे से, तो मेरा एंडोर्फिन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और अगर मैंने किसी को अच्छे से हक कर दिया, अपने जान पहचान वाले को, बाहर जाके नहीं किसी को, तो अपने आपने कर दिया, तो समझिए आपका ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बनना शुरू हो गया। तो आज के टाइम में अगर आप अच्छे से हंस सकते हैं, अच्छे से आपस में मिलजुल के अच्छे से बात कर सकते हैं और हंस मतलब एक दूसरे का अच्छा सोच सकते हैं, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपको अच्छा लगता है उसको जोर की झप्पी डाल सकते हैं, तो ये डेफिनेटली इज द इमीडिएट क्विक फिक्स। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो पॉइंट था कि भाई हम मतलब हार्मोन्स कैसे सिक्रीट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टडीज हो चुकी हैं इसके ऊपर, और मतलब इतना ज़्यादा स्टडी है कि ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। और आपको मैं नज़रों का भी, भाई जी भी कई बार बताते हैं, एक हैशिमोटो स्टडी भी था जिसमें उन्होंने बताया था कि पानी रखा गया और वहाँ पे वर्कशॉप करी, और उन्होंने 50 लोगों को उस कमरे में भेजा, उसमें एक पे हिटलर लिखा हुआ था और एक के ऊपर उन्होंने मदर टेरेसा लिखा था।
तो जब वो 50 लोग उस कमरे से गए और निकल के दूसरे दरवाजे से बाहर गए, तो दोनों के पानी की ड्रॉप को जब स्टडी किया माइक्रोस्कोप में, तो हिटलर वाला जो पानी का ड्रॉप था, दैट लुक लाइक अ स्प्लैश्ड वाटर, मतलब जैसे दीवार पे स्प्लैश करते हैं वैसा गंदा सा डिजाइन आया। और जो मदर टेरेसा वाला था तो उसमें क्रिस्टल्स बने हुए थे। तो किसी को अच्छी नजर से भी देख लेंगे और अच्छी नियत से भी देख लेंगे, तो भी आप समझिए हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ 66% ऑफ वाटर, सो दैट इज हेल्पिंग अस टू क्लीन आवर वाटर। आज हम ऑक्सीजन के लिए इतना रोए हैं, इतना भागे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे हॉस्पिटल में और दिल्ली के कम से कम हमारे 60 हॉस्पिटल्स में एसओएस हुआ है। एसओएस का फुल फॉर्म आपको पता है, सेव आवर शिप, एंड इट्स नाउ बिकम सेव आवर सोल्स। So we were actually trying to save other people's soul, and indirectly I was trying to save my soul. So अगर मुझे अपनी सोल को बचाना है तो एसओएस करने की जरूरत नहीं है। अच्छी नजर, अच्छी खुशी, अच्छी हंसी और अच्छा किसी के लिए सोचना। एक गीता में भी बोलते थे कि जब पुराना वॉर होता था ना, तो वो कहते थे शाम के बाद सब हथियार फेंक देते हैं। तो देयर वाज अ स्टोरी व्हिच वाज गोइंग ऑन, दे सेड दिस इज द टाइम, जस्ट थ्रो योर अस्त्र एंड शस्त्र and say कि yes, मेरे पास white flag है, I have good feelings for everybody right now, then only I'll be saved in this universe. So I think this is a big message from Brahma Kumaris, from a doctor as an experience, and this corona time, this is the best way to fight right now. Sir, there is one question, last question from the panel. Please. Sir, does this the light music listening have the same effect, sir? Yeah, Music absolutely. listening. Absolutely, that's got a very good. So basically जो चीज आपको खुशी दे और किसी और को परेशान ना करे, कई चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे को परेशान करके मुझे खुशी देती हैं, वो नहीं। पर लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, लिसनिंग टू गुड पीपल, रीडिंग गुड बुक्स, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ गेटिंग द हार्मोन सिक्रेटेड। और एक्सरसाइज, आई थिंक फिजिकली अगर आप सुबह उठ के वॉक कर सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है, मतलब पैसे में नहीं बोलूंगा, बट क्या कीमत है। आज बाहर नहीं जा सकते, पर किसी ना कोई छत होगी आपके पास, कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ लोग नहीं है, वहां आप चलिए और अच्छा म्यूजिक सुनिए। आई थिंक आपका 70% हो जाएगा। और अगर आपकी सैचुरेशन कभी भी 95 से नीचे जाने वाली होगी, तो वो पल उसमें मदद करेंगे आप। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत सर, सुंदर। थैंक यू। नजरें बाहर बदलो, जाके नजारे बदल हवा में डर लगता है ना, कि हवा में पता नहीं हवा से तभी ही मैं फैल कह रहा रहा है। हूँ तो तभी मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं, अभी आप अपने महफूज जगह में ही कर लें तो अच्छा है। बट डेफिनेटली अभी, बिकॉज इट्स नॉट श्योर दैट वेदर इट्स एयरबोर्न और नॉट, वी हैव गॉट लॉट ऑफ स्टडीज। मतलब मैं इंग्लैंड से कनेक्टेड हूँ, तो हमारे वहाँ रॉयल कॉलेज में भी, सर्जन में भी काफी स्टडीज आ चुकी हैं, और यूएस से भी आया है, और हमारे WHO ने भी बोला है। बट स्टिल, आई मीन, इट इज नॉट कंफर्म, but still I would advise everybody not to go out right now and go for walks or joggings or socialization, तो खैर मतलब ही नहीं है। So I think अपना घर ही सब कुछ है। तभी अभी ये टाइम है, जैसे भाई जी बताते हैं और दीदी बताते हैं, कि अंतर्मुखी होने का टाइम है। अंतर मतलब हमें अंदर जाना है, अभी बाहर नहीं जाना। जितना हम अंदर जाएंगे उतना हम बाहर, बाद में जाके बाहर जा पाएंगे। बहुत सुंदर। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं। एक कोई व्यक्ति मेरे पास आए, कहते हैं भाई साहब बाहर के हालात बहुत खतरनाक हैं, आप हालात बहुत खतरनाक हैं। कहते हालात को कैसे बदलूं? मैंने कहा हालात को आप नहीं बदल सकते हैं, हालात बाहर की चीज है। क्या आप अपने ख्यालात को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और जैसे ही हमने अपने ख्यालात को बदला, तो हालात अपने आप बदल गए। दोस्तों, जो आज का हमारा प्रोग्राम है और हमारे बहुत सारे वीडियोस, करीब 100, 200, 300 वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट है, अपने माइंड की मैपिंग कैसे करें, स्लीप को कैसे मैनेज करें। हमारा यूट्यूब चैनल है बीके पीयूष के नाम से, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नाउअडेज वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन मेडिटेशन डिस्कोर्स ऑल्सो। 3 दिन के लिए आधा घंटे डेली, मॉर्निंग, इवनिंग, ड्यूरिंग डे, वीकडेज, वीकेंड्स, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 डेज का फुल कोर्स लोधी रोड सेंटर की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। ये मैंने चैट बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स भेज दिए हैं, आप जरूर ज्वाइन करें। एनी अदर क्वेरी यू वांट टू आस्क, प्लीज कम। चैट बॉक्स में पीयूष सर, देयर आर 2 questions that I am looking at. One is, please tell us, some are getting infected even after having 2 doses of vaccine. एक तो वो क्वेश्चन है। दूसरा है सर, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर 3rd wave? ये 2 क्वेश्चन हैं। जी डॉक्टर साहब।
So I know it's very ironical and very sad because अभी तक हम लोग यही बोल रहे थे कि 2 डोज के बाद सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, मैं अभी भी यही बोलूंगा कि सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि सिवियरिटी कम हो रही है. सो डेफिनेटली ये हमने बहुत केसेस में देखा है कि सिवियरिटी कम हुई है. जिन लोगों को डोज लग चुकी थी उन लोगों को, जैसे हम कहते हैं कि परेशानी आई पर निकल गई. सो बट वी हैव हैड फ्यू केसेस एंड स्पेशली डॉक्टर्स में भी हुआ है जिनको 2 वैक्सीन लगने के बाद भी दे कुड नॉट सर्वाइव. सो आई वुड नॉट से दैट इट इज फुल प्रूफ. मतलब दिस कमेंट इज नॉट कि ये 100% है, क्योंकि स्पेशली बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को ही पहले लगाया गया और दे वर डूइंग वेल, तो इसलिए फेटेलिटी हुई है. बट मैं फिर भी ये कहूँगा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर किसी की हेलमेट पहन के भी एक्सीडेंट में हत्या, मतलब एक्सीडेंट में मर जाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हेलमेट मत पहनिए, क्योंकि हजारों ऐसे हैं जो हेलमेट की वजह से बचे. और एज ए सर्जन आई हैव सीन सो मेनी पीपल, तो मैं इसको हेलमेट ही बोलूँगा. और मैं एक्चुअली कहूँगा कि वेन एवर एंड हाउ एवर वी गेट द चांस वी मस्ट गेट वैक्सीनेशन. डेफिनेटली एंटीबॉडीज बन रही हैं और ये प्रूफ हो चुका है, और सेकंड के 4 to 6 वीक्स के बाद अच्छी एंटीबॉडीज बनी हैं. बट डेफिनेटली दीज आर ऑल स्टिल द, जैसे कोविशील्ड का तो डेफिनेटली 3rd फेज कंप्लीट हुआ, बट कोवैक्सीन का 3rd फेज चल रहा था, बट दोनों ही बराबर हैं. और ये है कि जरूर उनका फायदा है, तो इसलिए सिवियरिटी कम रहती है और चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन, जिस विच इज अ वेरी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये भी देखा गया था कि 3 से 5 दिन में ही जिन लोगों का ये बोला गया कि जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले ली थी, उनका चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन टू अदर्स आर इज जस्ट 3 to 5 days. सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिवियरिटी कम हो रही है और दूसरा ट्रांसमिशन का चांस कम होगा अगर आपको दोनों वैक्सीन लगी हुई है. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन आफ्टर द इन्फेक्शन. यस सर. अच्छा, वो एक तो आपने 3rd वेव भी पूछा था और री इन्फेक्शन भी, दोनों मैं एक साथ कवर करूंगा. सो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इज कि री इन्फेक्शन भी हो रही है. तो हमने काफी देखा है कि काफी लोगों को री इन्फेक्शन हो रही है, और उसमें मैं नंबर ये नहीं कहूंगा कि परसेंटेज वाइज इट इज वेरी लो, सो इट इज नॉट डिसहार्टनिंग. बट अगर री इन्फेक्शन हो रही है तो उसमें भी ये देखा गया है कि सिवियरिटी कम है, पहली बार, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एंटीबॉडीज थी. बट हो सकता है कि किसी म्यूटेंट से अब इस बार आपको हो गया, क्योंकि जैसे हम लोग कह रहे हैं, पहले साउथ अफ्रीकन का बात हो रहा था, फिर यूके म्यूटेंट का बात हुआ, फिर अब इंडियन म्यूटेंट बन गया है. सो अगर म्यूटेंट है तो डेफिनेटली वैक्सीन भी कवर नहीं कर पा रही है, और अगर ऐसा म्यूटेंट है तो री इन्फेक्शन का भी चांस है. सो इसलिए हमें, मेरे को एक बार हो गया है तो इसलिए मैं सोचूं कि अब मेरे को नहीं होगा. दिस इज द मैसेज कि आपको प्रिकॉशन लेनी है, बट द कॉन्फिडेंस शुड बी कि अब मेरे को होने का चांस बहुत कम है. सो फियर कहीं ना कहीं तो खत्म करना है. वी हैव टू ब्रेक दैट विशियस सर्कल कि मुझे एक बार हो गया, मैं ठीक निकल आया, मेरा इम्यूनिटी अच्छा है, अगर मुझे हो भी गया दोबारा तो आई विल बी फाइन. बट डेफिनेटली हमें कैलस नहीं रहना. और जहां तक 3rd वेव का सवाल है, वही मैं आपको बता रहा था कि वी आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक. हमने यही देखा है सारी स्टडीज में कि अगर हम 60 to 70%, विच हैज बीन ऑलरेडी टोल्ड बाय ICMR एंड WHO, कि अगर हम 70% कवर करते हैं, 70% को इन्फेक्शन हो जाती है, तो हम कह रहे थे कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी. वो हुआ नहीं है. पर वैक्सीनेशन का हमारा ये था कि 70% को हो जाए तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी मच पॉसिबल जो अभी सिचुएशन है. तो हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर हमारा 50 to 70% वैक्सीनेशन कवर हो जाता है तो 3rd वेव का आने का बहुत कम चांस है. नहीं तो लॉजिकली देखा जाए 2 से 3 महीना बहुत मुश्किल है कि इतना लोग कवर हो सकें. इसलिए थर्ड का आने का चांस है, और सबसे ज्यादा चांस है कि 3rd वेव में चांस है कि यंगस्टर्स विल बी मोर इन्वॉल्व. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दैट. वी डोंट हैव टू हैव फियर. जो आज का हमारा मैसेज है कि डरना नहीं है, बट यंगस्टर्स जो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा आने वाले टाइम में, वो ये लेके चलें कि अगले 4 से 5 महीने मुझे अपना ध्यान रखना है, 3rd वेव आ सकती है. डरना नहीं है, बट कॉशियस. Very good. Very good. Anybody else would like to ask anything? Sir, I see 2-3 questions in the chat box. I would request that instead of chat box, why not you come online with video on and ask the question to sir? Yeah, they can interact. Yes, please. Please do that. सर मेरा एक क्वेश्चन है. अपना इंट्रोडक्शन दें पहले. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज. सर माय नेम इज देवेश कुमार एंड आई एम पोस्टेड एट कंस्ट्रक्शन साइट न्यू दिल्ली. Okay, please.
Yes, please. सर मेरे एक क्वेश्चन है कि जैसे पिछले दिनों भी बात हो रही थी कि ये वायरस क्या आंखों के रास्ते भी एंटर करता है क्या? इज इट करेक्ट? आंखों के रास्ते मतलब है कि इसके सिम्टम्स जो पाए गए हैं वो इस बार देखा गया कि कंजंक्टिवाइटिस भी काफी लोगों को दिखा है. सो बेसिकली वी आल्सो आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा है. तो वो बैक्टीरिया तो बहुत कॉमन है पर वायरल भी काफी कॉमन है. तो ये रूट आंखें हैं ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है, बट मैनिफेस्टेशन आंखें हैं ऐसा कंफर्म हो चुका है, जो कि पहले नहीं था. ओके, 4 डॉक्यूमेंट नहीं, बेसिकली एक सेकंड नहीं तो अब आंखें बंद करके भी चलना आने वाला है टाइम जब आपको आंखों पे भी बंद करके चलने की आदत करनी पड़ेगी. बिल्कुल. एक सेकंड. Yeah, 9518 है, 9519 नहीं है. बट अभी नहीं है. अभी आई थिंक वी शुड नॉट बी स्केयर्ड कि इस ट्रांसमिशन अभी कंफर्म नहीं है एंड इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड. बट आई मैनिफेस्टेशन इज एब्सोल्युटली देयर. मैनिफेस्टेशन से मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि 3 मैनिफेस्टेशन जो हम पहले भी बात कर रहे थे आई के अलावा, जो इस बार बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं वो है स्किन मैनिफेस्टेशन. तो जो फंगल इन्फेक्शंस है, म्यूकोरमाइकोसिस से बहुत डेथ्स हो गई हैं, ब्लैक फंगस करके आपने सुना होगा. तो अगर किसी को भी स्किन इन्फेक्शन भी है तो डरना नहीं है कि डरना नहीं कि मुझे कोरोना हो गया. या तो फिर बट मेरे दैट को इज बना आल्सो है वन ऑफ तो द मैनिफेस्टेशन दिस टाइम. तो अगर आप ठीक है. हाँ ठीक है. ये यही 2 पॉइंट्स है ना सर? डॉक्टर सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए और आप लोग आपस में एक टास्क इनवाइट आप Kindly बाकी unmute कर अपना रिटर्न द पार्टिसिपेंट में प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Please. तो पहला हो गया हमारा बाकी आइस का जो आपने मेंशन किया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया. दूसरा मैंने आपको बताया कि स्किन इन्फेक्शंस के माध्यम से भी इस बार कोरोना की मैनिफेस्टेशन हो रही है. और तीसरा जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो क्लॉटिंग प्रॉब्लम से. तो अगर आपको कोई रैशेस आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि रेड हो रहे हैं, मतलब हमें साइक नहीं होना है, फोबिया नहीं होना है कि वो मुझे ऐसा वाला हो गया है, पर हमें उसमें भी कॉशियस रहना है कि कहीं मेरे को कोई क्लॉटिंग डिफेक्ट्स तो नहीं शुरू हो गए. और चौथा, जिनको कार्डियक की प्रॉब्लम ऑलरेडी है वो प्लीज अपने ब्लड प्रेशर, अपनी मेडिसिन, थायराइड है, डायबिटीज है, उनको जरूर अपना फॉलो रखिए और अपने फिजिशियन से टच में रहिए. उनका कंट्रोल जरूरी है कि अगर बाई चांस आपको कोरोना हो जाता है तो बाद में कार्डियक मैनिफेस्टेशंस भी इस बार बहुत ज्यादा देखी गई हैं, कोरोना ठीक होने के बाद भी, 4 से 5 हफ्ते के बाद भी. तो यही वाली बात है, फिर वही बात आ रही है कि डरना नहीं है, लड़ना है. लड़ेंगे कैसे? जब हमारे पास सब हथियार होंगे और जब सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होगा. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट. माइंड अपना हल्का रखे एंड वी शुड हैव दिस इन्फॉर्मेशन विद अस. Okay, there are certain questions being addressed to BK sister Girija and also to you, sir. So would request you to come on the screen and ask question, please. One question. सर जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कितने चांसेस है कोरोना होने के? और दूसरा सुनने में आ रहा है अभी कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों को ही अफेक्ट करेगी. तो इसके बारे में सर आपका क्या रेस्पॉन्स है? अब वही मैंने अभी मेंशन किया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर 5 साल के बच्चे के होने का चांस कम है, बट डेफिनेटली है. मतलब अब हम हर एज में देख रहे हैं, 3 महीने से लेके 3 साल 13 साल के बच्चे हमारे पास आ चुके हैं जिनको हम देख चुके हैं पॉजिटिव आते हुए. सो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बताया आपको, उनके लिए वर्किंग करना है कि उनको कॉशनली फॉलो करना है, देखना है कि उनको कोई सिम्टम्स हैं कि नहीं है. अगर फैमिली में किसी को भी सिम्टम्स हैं तो अब आज के टाइम में आपको बच्चे को टोटली आइसोलेट नहीं कर सकते, पर जैसे बताया टोटल प्रिकॉशन लेनी होगी. आपको मास्क अपना और उसका मास्क बहुत ध्यान से रखना होगा. अगर आप आइसोलेट नहीं कर पा रहे, अगर आइसोलेट कर पा रहे हैं अपने आप को और एक पेरेंट ठीक है, तो इट शुड बी स्ट्रिक्टली दैट 14 to 17 days दैट चाइल्ड शुड नॉट बी इन टच विद दैट पेरेंट. नंबर 1. नंबर 2, बच्चे के लक्षण देखने हैं. बच्चों में सबसे ज्यादा हमें इस टाइम रनिंग नोज एंड फीवर के लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं. बच्चों का सिर्फ नाक टपक रहा है और उनको लग रहा है कि क्या हो रहा है, पर उनका नाक टपकता जा रहा है. और दूसरा, उनको बुखार आ रहा है जो कि बहुत हाई नहीं है इस टाइम पे, 100, 99, 100 आ रहा है. और तीसरा डेफिनेटली खांसी है जो कि डेफिनेटली डिफरेंट साउंड करती है एंड कंटिन्यूअस होती है. तो ये 2-3 लक्षण बहुत देखने हैं. और कई बच्चे ऐसे हैं जो जैसे बड़ों की तरह वो भी लेथार्जिक फील कर रहे हैं, वो उठ नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, खाना खाने का मन नहीं है, भूख नहीं है, डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है. तो आज के टाइम में ये सारे लक्षण को हमें किसी, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर टाइफॉइड ऑल्सो, सो दिस इज द टाइम फॉर मलेरिया ऑल्सो, सर्टेन थिंग्स जो हम हमेशा बच्चों में गैस्ट्रोएंटराइटिस देखते थे, तो हमें इस पे बहुत अच्छे से डिमार्केट करना है
और अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर बात करनी है, दिखाना है। और जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है, मैंने वही बता रहा हूँ बाबा कि डरना नहीं है, बट समझना है कि थर्ड वेव इस बार बच्चों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, रिस्की है। वो इस तरह से है कि देखिए, जब हमने एल्डरली पेशेंट्स को ट्रीट किया, पिछली बार हमने एडल्ट्स को 60+ को किया, तो हम लोग सोच रहे थे कि वो लोगों में ज्यादा परेशानी आएगी और वो सर्वाइवल मुश्किल होगा। बट इस बार इट इज वेरी सैड टू से दैट यंगस्टर्स आर जस्ट, जो जिनको हो रहा है और सीवियर हो रहा है, दे आर जस्ट गोइंग। मतलब हम लोगों ने बहुत देख लिए हैं 22। राइट, नहीं उसमें फीडरलेस दोबारा नहीं डालता, अगर हम फीडरलेस स्टडी, हाँ ठीक है, डीसी वाला तो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये है कि अब जो थर्ड वेव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दोनों तीनों रीजंस हैं। पहला रीजन कि हमने एल्डरली को वैक्सीनेट कर दिया, फिर दूसरा रीजन है जो बीच वाले हैं, उन्होंने अपने आप को प्रिकॉशन ले ली, पर बच्चा तो बेचारा जस्ट एक्सपोज रहेगा किसी से भी। कोई घर में आया, मेड आई, कोई सामान लेके आया, कोई घर वाले मिलने आए, तो बच्चा एक्सपोज है। तो आज के टाइम में जो बच्चे के पास मास्क नहीं होता था, या बेचारे का मास्क यहाँ पर होता था या सर पे होता था, तो वो हटा के उसको नॉर्मल मास्क की तरह लाया जाए। वो दे यूज्ड टू प्ले विद इट, बट नाउ वी हैव टू बी कॉशियस। मतलब इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टडी विच इज डेफिनेटली शोइंग कि 18 साल से कम वालों का अब हमें ज्यादा ध्यान रखना है। मुझे एक ऐसे सीरियस माहौल में एक चीज याद आ रही है कि मेरे दादाजी थे, तो वो 90 ईयर्स के थे, तो हमारे घर में बहुत पुराना वो था, जो सबको खाना पीना देता था, वो एक दूध का गिलास लेके जा रहा था। तो मेरे दादा ने पूछा कि तू कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि जी मैं बच्चों को देने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि बच्चों के पास बहुत उम्र है अभी दूध पीने के लिए, मेरे पता नहीं कितने साल बचे, मुझे पिला दे पहले। पहले हमारा ये होता था कि हम एल्डरली को बचा रहे थे, फिर हमारा ये हुआ कि अब हम यंगस्टर्स को बचा रहे हैं। बट दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू सेव द रियल टीनेजर्स एंड द स्मॉल किड्स। तो उनको बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होने देना अगले 4 से 5। यस, ये दोनों निपटा लो। थैंक यू वेरी मच सर। फिर वो मेल करेगा, वो दीपक को मेल कर देगा, ऑटोकैड एज वेल एज पीडीएफ, ठीक है। यस प्लीज जेपी। मेरा क्वेश्चन पीयूष जी और गिरिजा जी से है। जी अपना परिचय दें मैडम। मैं मिस्टर कैलाश अग्रवाल उनकी वाइफ हूँ जी। वो EIL में अकाउंट डिपार्टमेंट। आप कहाँ हैं अभी? दिल्ली में ही हैं? जी दिल्ली से ही। बताइए। मेरा बेटा 5 साल का है, वो बहुत ज्यादा चंचल है जी। तो मैं जैसे उसको ध्यान योगा कुछ भी कराना चाहती हूँ, वो 5 मिनट में टिक के नहीं बैठ पाता है जी। और उसे अगर टिक के बैठना है तो वो फिर अंगूठा चूसने लग जाता है। तो मैं उसे कौन से ऐसे प्रयोग स्टार्टिंग में कराऊं कि वो धीरे धीरे स्थिर बैठे और कर पाए? देखिए मैडम, जब हम बच्चे थे तो हमने क्या किया, जो आज वो बच्चा कर रहा है। हमारे ब्रह्मा कुमारी में मॉर्निंग में 8 AM डेली पर यहाँ एक मुरली चलती है जिसको हम कहते हैं ज्ञान की मुरली। तो कई बार उसमें बड़े बैठते हैं। यह है कि हम जब बच्चे थे तो हम भी शरारत करते थे, बच्चों का काम शरारत करना है। हमारा टाइम बहुत ज्यादा रहा, हमने बहुत 10-15 साल तक भी मजे किए। आजकल बच्चों के पास 3-4 साल भी टाइम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि बच्चों को कैसे गाइड करें, कैसे समझाएं। बच्चे कॉपी करने में बहुत होशियार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गैजेट्स को, मोबाइल को यूज न करे, टीवी कम देखे, तो पहले मुझे अपना टीवी छोड़ना पड़ेगा, मुझे मोबाइल पर बात करना कम करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूं कि मैं बात करता रहूं, मैं बात करती रहूं और बच्चों को मैं कहूं कि बच्चे आप ये नहीं करिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तीसरी बात, हमारे यहाँ मॉर्निंग में एवरी डे वी कॉल इट सत्संग 7 to 8 AM। तो उसमें क्या होता है, बड़े जुड़ते हैं, वो पूछते हैं हम छोटों को भी बच्चों को भी लाएं। बच्चे सुनते तो कुछ है नहीं, मैंने कहा नहीं, आप बच्चों को जरूर लाइए। जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल क्रिएट हो रहा है, वो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है। तो जैसे ही बच्चे ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, तो फिर उनकी भावनाएं, उनकी थिंकिंग जरूर उन बातों से प्रभावित होती है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। और बच्चों को कई सारी बातें हम मुख से नहीं बोल सकते हैं आजकल, क्योंकि बच्चों के पास आपसे भी ज्यादा जवाब हैं। तो मैंने क्या करता हूं, मैं कहता हूं जब आपका बच्चा सोया हुआ है ना, तो आप 5 मिनट के लिए मेडिटेट करें कि ये बच्चा बहुत अच्छा है,
ये बच्चा देवकुल की आत्मा है। ये बच्चा इस परिवार का नाम रोशन करने वाला है। मैंने ना आपको एक तो आप देखेंगे जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो उस बच्चे के पास जा रही है और उस बच्चे के अंदर परिवर्तन आएगा। जब भी आप बच्चे को पानी पिलाएंगे तो 1 मिनट के लिए उस पानी को चार्ज कर लीजिए। चार्ज करना माने ऐसे नहीं ग्लास मेरे सामने आया मैंने तुरंत पी लिया, या मैं पानी भी पी रहा हूं और मैं मोबाइल से बात भी कर रहा हूं, कभी नहीं करिए। जब भी पानी का ग्लास आपके सामने आए तो 1 मिनट भगवान की याद में बैठ जाइए, या तो थिंक समथिंग पॉजिटिव। तो उस पानी में मैंने एनर्जी डाल दी, अब वो पानी अमृत बन गया। तो जब उस बच्चे को आप ये पानी पिलाएंगे तो उसका अंदर का सारा सिस्टम क्लीन होगा। ऐसे ही भोजन के लिए भी हमें करना है कि भोजन कभी भी हमारे सामने आए, हमारे भारत की संस्कृति में बहुत पुरानी कहावत है कि भजन और भोजन एकांत में होना चाहिए। तो कभी भी हम भोजन बना रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, कोई भी गैजेट का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी। तो ये सारी चीजें आप करेंगी और सवेरे जब आप उठेंगी, आपके लिए बता रहा हूं, आपको चूंकि बच्चे को चेंज करना है, कल सवेरे आप थोड़ा जल्दी उठें और आधा घंटे के लिए आप कोई टॉक नहीं करें। कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। एक सप्ताह के लिए आप सवेरे आधा घंटे के लिए घर में मौन रखेंगे और उसमें एक छोटी एक्सरसाइज कर लेंगे। मैं चाहूंगा आप सभी को एक्सरसाइज करा देता हूं, जल्दी से अपना हाथ ऊपर कर लेंगे और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट। जिनका चेहरा गंभीर होगा, आई में आस्क देम ए क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल सीधा करिए और पीछे लेके जाइए अपना हाथ और बोलिए शाबाश। मुस्कुरा के बोलिए शाबाश। दूसरी बात, मैं ठीक हूं, आई एम ओके। तीसरी बात, मैं विशेष हूं, आई एम यूनिक। और चौथी और अंतिम बात, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो अब आपका घर मंदिर बन गया और आप सोच सकती हैं मंदिर में कौन से बच्चे होंगे। मंदिर में तो श्रवण कुमार ही पैदा होंगे ना। तो मेरा बच्चा श्रवण कुमार है। कभी बच्चे को गाली दे के बात नहीं करना, कभी बच्चे को डांटना नहीं। अगर कोई बात बतानी भी पड़े तो बहुत प्यार से बताइए, तो जरूर आपका बच्चा अच्छा बच्चा बन जाएगा। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चंस हो? हाँ, मैं एसपी गुप्ता। ये बच्चा तो बहुत आ अच्छा गया। है। ये तो बच्चा मुस्कुराता है हरदम, इतना गुप्ता अच्छा सर। बच्चा है, देखिए। हाँ, नमस्कार जेपी साहब। नमस्कार गुप्ता सर, प्लीज। हाँ, मेरा डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने 14 अप्रैल को कोविशील्ड लगाया और आफ्टर 28 डेज के बाद बताया, लेकिन अभी ऐसा समय लग रहा है कि कब लग पाएगा। तो फिर इसका क्या बेकार हो जाएगा फर्स्ट डोज, या फर्स्ट डोज कब तक सेकंड डोज लगा लेने से भी फर्स्ट डोज ठीक रहेगा? इज देयर एनी मैक्सिमम टाइम लिमिट? हाँ जी, नमस्कार जी। तो आपका ये आपने क्या कोविशील्ड लगाया ना आपने? हाँ, कोविशील्ड 14 अप्रैल। 14 हाँ जी, पहली जो 14 अप्रैल एंड he is prescribed that next due date is after 28 days. But at present it is looking that कब ये इंजेक्शन लग पाएगा कुछ नहीं पता है हमको। तो वो तो एक अलग टॉपिक है, पर ये है कि 14 अप्रैल को ये जो आपका हुआ, तो अब जो कोविशील्ड का पहला निकला था वो 28 डेज निकला था, बट उसके बाद देयर हैव बीन सो मेनी स्टडीज और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि अब एक्चुअली 8 to 12 वीक्स इसके लिए अच्छा है, बल्कि आइडियल है। सो 2 से 3 महीने तक आप सेफ हैं, उसके बाद भी सेफ हैं, पर 2 से 3 महीने तक आपको सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप 12 हफ्ते के वक्त भी लगाते हैं तो भी आपकी एंटीबॉडीज ठीक हैं और दोबारा बन जाएंगी अच्छे से। सो अभी यू डोंट हैव टू वरी, मतलब आप समझ लीजिए कि 2 महीने से पहले तो आपको लगाना ही नहीं है, 2 महीने के बाद ही लगाना है आप, है ना। 8 से 12 हफ्ते के बीच में लगा पाए तो ठीक है, वरना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आपका एंटीबॉडीज सिक्योर रहेंगी। अच्छा, 8 से 12 वीक, और 12 वीक से भी ज्यादा हो जाता है तो फिर एक चांस लेके चलते।
तो 12 फिर क्या वीक्स होगा? 12 वीक से भी ज्यादा हो जाए तो कोविशील्ड में अभी भी ये स्टडी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 मंथ्स तक भी से भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो भी चल जाएगा, लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू ओके सर मैं अश्विनी। सर डॉक्टर साहब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है सर? बच्चों के लिए अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई है उसमें 5 से 18 का ओके हो गया है, बट अभी उनको गो नहीं मिला है उसके लिए लगाने के लिए। बट जो सबसे ज्यादा कोविशील्ड का जो स्टडी हुआ था तो पहले उन्होंने 18 के नीचे नहीं बोला था, तो 5 to 18 में जो हो गया है उसके अंदर उसको सेफ माना गया है। बट अभी गो नहीं मिला है, सो दे हैव नॉट सेड कि आप लगा सकते हैं, मतलब उनको अभी वो नहीं दिया गया है। बट स्टडी में जो आया है वो आ चुका है कि 5 to 18 में भी सेफ रहेगा। थैंक यू सर। चलिए सब, जेपी साहब यस सर। वी कैन कॉल इट ए डे नाउ। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ गई है। और मैं आपको बताऊं राज की बात, मैं सबके ऑरा को पढ़ लेता हूं। दोस्तों ऑरा क्या है? पावर ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो 3 बजे जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था तो योर ऑरा वाज लो, योर फेस वाज लिटिल डिम, बट आफ्टर दिस 90 मिनट्स 100 मिनट्स प्रोग्राम योर फेस इज ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। तो अब आपको बस ऐसे ही ग्लो बनाए रखना है। और कोरोना के बारे में कोई बात नहीं करनी है दोस्तों, हेल्थ के बारे में बात करनी है, डेथ के बारे में बात नहीं करनी है, लाइफ के बारे में बात करनी है, संक्रमण के बारे में बात नहीं करनी है, सेफ्टी के बारे में बात करनी है, राइट? तो आप जरूर सेफ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, और जो एक्सरसाइज मैंने बताई है जरूर करते रहना है, तो सब कुछ ठीक रहेगा, नथिंग टू वरी। ओके, राइट सर। समाप्त करें। Yes, sir. Participant, we have a participant training department, full YAL, sir. Thank you so much to you, Girija sister, Girija and Doctor sir, Dr. Sabharwal sir. Many thanks. और wonderful रहा, आप लोग ऐसे ही हमें मोटिवेट किए और हमेशा याद रहेंगे। Thank you. थैंक यू। We really needed this. नमस्कार। सर